everyone. Today we will start with the chapter How do organisms reproduce, class 10th, chapter number 8. So first of all, how do organisms reproduce? So you must know what is reproduction. What is reproduction? The reproduction is a process by which living organisms produce new individual similar to themselves. It is a process and it is responsible for continuity of species. So what is importance of reproduction? What is significance of reproduction? Why is reproduction is important? Because it ensures continuity of life on the earth. For example, if all the living organisms decline to reproduce, तो हमारी जो species है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और अल्टीमेटली एक दिन कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा. सो रिप्रोडक्शन इज essential to ensure continuity of life on the earth. Next come chromosome. What is chromosome? How do reproduction occur? How do variation occur? And how do character transmitted from parents to offspring? You must know this. So what is chromosome? आपने क्लास 9th में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिन व्हेन कंडेंस दे फॉर्म क्रोमोसोम. Now what is significance of these chromosomes? The chromosomes in the cell contain information for inheritance of features. Chromosome contain information. Information means कि whenever any organism reproduce, तो some characters of males and female, some character of mother and father get inherited. And this inheritance of feature is due to the presence of chromosomes, which pass from generation to generation in the form of DNA molecule. So, reproduction involves copying of DNA. Some part of 50% of DNA is contributed from mothers, 50% from father. So, in reproduction, copying of DNA will occur. The copies will be similar to original or not identical. They look similar. ठीक है, जैसे ये तो पता चलता है कि ये जो बच्चा है इसकी मदर ये हैं या फादर ये हैं. They look similar but they are not identical. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जो है वरुण धवन का बेटा वरुण धवन जैसा ही हो. लुक अलाइक, ठीक है, एकदम ऐसे लगेगा हाँ ये बेटा हो सकता है, बट ये नहीं कि वरुण धवन की ब्लूप्रिंट है, फोटोकॉपी है, ऐसा नहीं होता. बिकॉज कॉपिंग ऑफ डीएनए होती है. नाउ कम वेरिएशन. द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएशन मीन्स चेंजेस. ठीक है, वेरिएशंस आर चेंजेस. The property of variation is the basis and necessary for evolution of living organism, and variation is an important part for the evolution because and sexual reproduction leads to variation. Now what is importance of variation? Variation means changes in the living organism. और जैसे हमारा environment change हो रहा है, ठीक है, तो वेरिएशंस इज असेंशियल टू बी इन द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज वेरिएशन हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट और अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो वेरिएशन हेल्प द स्पीशीज मीन्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरनमेंट चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे यहाँ अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो रहा है. अब यदि पोलर बियर के अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगे कि स्लाइटली ज़्यादा टेम्परेचर में वो अपने आप को एडजस्ट करें तो क्या होगा? ऑल द पोलर बियर विल पेरिश. तो वेरिएशन जो है, जो उनके अंदर वेरिएशन आ गई कि भाई ठीक है, यदि वो -40 डिग्री पे रहते थे अब वो -37 पे रह सकते हैं. तो इस वेरिएशन ने उन्हें हेल्प की टू विथस्टैंड द ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस, दस सेव द स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट. यदि वो नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे.
सो एक्सटिंक्ट से बचने के लिए देयर शुड बी सम वेरिएशन. Now come differentiate between sexual reproduction and asexual reproduction. What is asexual reproduction? It is a type of reproduction in which single parent is involved, whereas in sexual reproduction both parent, male and female, are involved. No fusion of gamete take place. Here fusion of gamete take place. Now third part आता है कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनी मीन्स कि न्यू जनरेशन वो जो होती है वो जेनेटिकली सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है पेरेंट के, बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर एज सिंस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट, देयरफॉर वेरिएशन. Next come different type of asexual reproduction. In asexual reproduction, पहले तो what is asexual reproduction? The type of reproduction in which new organism produce from single mother parent. And different type of asexual reproduction are first fission. First is fission. Fission क्या होता है कि in this the parent body divides into two or many daughter cell. Fission are of two type. Binary fission. Binary means two. Bi means two. So when a parent plant divides into two, it is known as binary fission. The parent cell splits into two daughter cell. For example, amoeba. And this diagram is very important. This is mother cell. First, its cytoplasm and nucleus get elongated and then they divide into two daughter cells. So this is binary fission in which parent cell divides equally into two daughter cells. In case of multiple fission का example है प्लाज्मोडियम. बाइनरी फिजन का एक अमीबा और एक लेशमीनिया दो एग्जाम्पल हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. एंड इन मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मीन्स मैनी, द पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू मैनी सेल्स. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, दैट इज मलेरियल पैरासाइट. तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? दिस इज पेरेंट सेल. फर्स्ट ये सपोज 10-15 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ एंड देन 10-15 से हंड्रेड्स ऑफ डॉटर सेल में बन गया, मीन्स मल्टीप्लाई होते गए. तो इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू मैनी. नाउ कम फ्रेगमेंटेशन एज इट्स नेम इंडिकेट्स, फ्रेगमेंट्स होना. तो इन दिस द ब्रोकन पीसेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट सेल हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, दैट डिवाइड्स इनटू, ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू अ न्यू डॉटर सेल. हेयर दिस इज स्पायरोगायरा एंड स्पायरोगायरा के जो है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं. ये बन गया और ये बन गया और उसके बाद उन फ्रेगमेंट से नए डॉटर सेल अराइज हो जाएंगे. तो example of fragmentation is Spirogyra. In this parent cell broken down into different fragments and leading to the giving rise of new daughter cell. Next process of asexual reproduction is regeneration. Some animals can develop a new individual from broken older parts by the process of called regeneration. And regeneration, it is necessary that specialized cell should be there. Regeneration, इसमें some simple animals can develop into new individual from their broken older part by the process called regeneration. तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे प्लेनेरिया है, हाइड्रा है और स्टारफिश है. ये 3 एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हो. इसमें प्लेनेरिया पेरेंट प्लांट डिवाइड इनटू 2 पीसेस और फिर ये 2 पीसेस से 2 डॉटर सेल में बन गया. सिमिलरली हाइड्रा है, हाइड्रा ब्रोकन डाउन इनटू 2 पीसेस और फिर ये 2 इंडिविजुअल में बन गया.
So this is regeneration. The essential condition of regeneration is that the part from where it is broken, जिस part से ये टूटा है, that part should have specialized cell. इन दोनों के पास specialized cell होंगे, वहीं से new organism grow होगा. Next come budding. Next is budding. Budding is the fourth process of asexual reproduction. In this process, a small bud, a small outgrowth comes out of the parent body, and when this bud fully grows, it finally detached or may not detach from the parent plant. Why I said ki detached or not detached? In the case of hydra, it get detached, but in the case of yeast, it may or may not detach. So in this process, a new organism is produced as an outgrowth of the parent body part. एक outgrowth आ जाती है parent body part में. For example, this is yeast. This is yeast. This is parent plant. This is bud. Bud grows, and then these bud again एक bud पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा organism आ गया. तो ये may be detached or may not be detached. Next process comes spore formation. स्पोर फॉर्मेशन होता है ब्रेड मोल्ड में. कई बार हमारी ब्रेड के ऊपर जब ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, हम कहते हैं कि ब्रेड खराब हो गई है बिकॉज इस पर फंगस आ गई है. तो वो क्या होता है? दैट इज ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में अ स्मॉल बल्ब लाइक, एक स्मॉल बल्ब लाइक structure called spores develops in the top of erect hypha. This is hypha. और इसमें जो है ये स्पोरेंजियम आ जाते हैं, और इन स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स आ जाते हैं. और जब ये एक अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो दी स्पोर्स आर इन द स्पोरेंजियम. व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स, दी स्पोर्स ब्रेक डाउन and spores will settle, fall into the soil and new organism arise. So this is done in rhizopus. This is the structure of rhizopus. Next most important part of the reproduction, asexual reproduction, is vegetative propagation. What is vegetative propagation? Vegetative propagation is when a new plant arise from vegetative part of the plant. जब भी कोई नया प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से अराइज होता है. कौन से हैं वेजिटेटिव पार्ट? स्टेम, रूट्स एंड लीफ. These are three vegetative parts of the plant, and when new plant arise from these three parts under favorable condition, so we said it is vegetative propagation or vegetative reproduction. Now come natural vegetative propagation and artificial propagation. In natural vegetative propagation, new plant arise from stem, leaf and root. So this is stem vegetative propagation through stem in the case of ginger. देखिए ये जिंजर है, इसमें ये एडवेंशियस रूट्स आ जाती हैं नोट्स पर. नोट्स होते हैं जहाँ से लीफ अराइज होती है और ये बड्स बन जाती हैं और ये इवेंचुअली न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है. दिस इज़ अनियन. अनियन में भी स्टेम के थ्रू न्यू प्लांट अराइज होता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट इन द केस ऑफ स्वीट पोटैटो एंड दहलिया. रूट से न्यू प्लांट अराइज होता है. दिस इज़ अगेन नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इन द केस ऑफ लीफ, लीफ के आपको दो एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे. एक तो ब्रायोफिलम एंड सेकेंड इज बेगोनिया. तो ब्रायोफिलम के जो नोचेस पर ऐसी लीफ जो है ऐसी बड्स आ जाती हैं, और व्हेन दिस लीफ जो है ज़मीन पे गिरती है और अर्थ सॉइल के अंदर चली जाती है तो न्यू प्लांट अराइजेस. नाउ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले आता है ग्राफ्टिंग, मैंगो, कटिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर.
Tissue culture is basically done in ornamental plants, orchids, jasmine, etc. What is grafting? ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक प्लांट है, सपोज रेड फ्लावर का या पिंक फ्लावर का है, और आपके पास दूसरा जो प्लांट है, जो दूसरा फ्लावर है, दैट इज ऑफ येलो। नाउ आप चाहते हो कि इनके बीच का जो कलर है वो आ जाए, तो आप इनकी स्टेम्स को ऐसे तोड़ते हो और उसके बाद जैसे एक पार्ट का ये प्लांट है स्टॉक और दूसरे का सियान लेके उसके ऊपर लगा देते हैं और इसको हम बैंडेज से बांध देते हैं। ठीक है, इसको हम बिल्कुल कपड़ा लगा के बहुत टाइटली बांध देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। इन कटिंग रोज़ में है, शुगर केन में है, तो एक छोटी सी कट जैसे हम मनी प्लांट में भी करते हैं, स्टेम काटते हैं और उसको जो है पानी में डाल देते हैं। सिमिलरली शुगर केन है, रोज़ है, यदि हम उसकी स्टेम को तोड़ के मिट्टी में डाल देंगे तो उस पर नई जो है रूट्स आ जाएंगी। लेयरिंग, इन लेयरिंग ये जो लेयरिंग है दैट इज डन इन जैस्मिन। इन दिस स्टेम इज नॉट सपोज टू कट, जस्ट बेंड दिस स्टेम एंड उसको मिट्टी के अंदर, जो सॉइल के अंदर है वो सॉइल के अंदर डालकर कवर कर दो, तो उस स्टेम पर ही अपने आप नई रूट्स आ जाएंगे। इन द केस ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है कि टिश्यू कल्चर में कोई भी एक नई वैरायटी जो होती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, उसको कल्चर मीडियम में डालकर एंड देन ग्रोथ हार्मोन देकर उससे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाए जाते हैं और फिर उन प्लांटलेट्स को मेन फील्ड में डालकर न्यू प्लांट अराइज कर लेते हैं। नाउ कम व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बेसिकली उगाए जाते हैं? सबसे पहला कि प्लांट्स कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर देन दोज विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है दिस इज़ फास्ट प्रोसेस। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज टू ग्रो सीडलेस प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एट्सेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। ऑल द ऑफस्प्रिंग, ऑल द जो नए प्लांट्स होते हैं दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द मेन प्लांट, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द मेन प्लांट, दे हेल्प टू ग्रो सीडलेस fruit and it is cheaper method of growing plants. So for these conditions when vegetative propagation is basically done. Now come what are disadvantages of vegetative propagation? What are disadvantages? Plants gradually lose its genetic variation. Since many plants are produced, तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हो जाते हैं। और वन मोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इज, फॉर एग्जाम्पल इफ वन प्लांट इज इन्फेक्टेड विद एनी इंसेक्ट देन द होल प्लांट will get infected because all the new flowers or fruits which are growing through vegetative propagation are genetically similar. तो जो एक प्लांट में खराबी होगी वो सभी प्लांट्स में हो जाएगी। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर मैंने आपको थोड़ा समझाया है बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मैं आपको समझाती हूँ। टिश्यू कल्चर, इन दिस टेक्निक द सेल्स इज रिमूव फ्रॉम द टिप ऑफ द प्लांट। जैसे सपोज यू गो अब्रॉड एंड वहाँ से आपको एक फ्लावर बड़ा पसंद आता है एंड इट इज़ नॉट जेनेटिकली ग्रोन इन इंडिया, सो यू रिमूव द सेल्स फ्रॉम द टिप ऑफ द प्लांट एंड प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म दी सेल्स एंड द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज कैलस। वहाँ से आपको क्या हुआ कि आपने कल्चर मीडियम में डाला, ग्रुप ऑफ सेल्स बने एंड देन वो जो है छोटे छोटे प्लांटलेट्स में चेंज हो गए जब आपने उन्हें ग्रोथ हार्मोन दिए। प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसफर्ड इनटू द सॉइल टू ग्रो द मैच्योर प्लांट। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड
प्लांट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि दिस टेक्निक इज़ जो बेसिकली जो है इन्वॉल्व होती है डिजीज फ्री प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट asexual reproduction. Now comes sexual reproduction. So what is sexual reproduction? Sexual reproduction is a process of reproduction which involve fusion of gametes, both gametes, that is male and female. And fusion of gametes is called fertilization. What is fertilization? Fertilization is the fusion of male and female gamete. Fertilization are of two types, external fertilization and internal fertilization. External fertilization, when the fusion of male and female gametes occur outside the body of female, for example frog. Internal fertilization, when the fusion of male and female gamete take place inside the body of female, that is cow, buffaloes, human being, etc. So during sexual reproduction, the exchange of chromosome take place between the homologous chromosome. So during sexual reproduction, exchange of genetic fragments between homologous chromosome occur, causing genetic recombination. और जब वो गैमेट फॉर्मेशन से फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, वेरिएशंस आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? यस, प्लांट्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट ऑल प्लांट्स, सर्टेन प्लांट्स। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सो हम रीड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फिलामेंट एंड एंथर। एंड मेल गैमेट इज पोलन ग्रेन दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एंथर। कार्पल, कार्पल इज द फीमेल पार्ट। इट कंटेन्स 3 पार्ट। जैसे इसने कहा है फिलामेंट एंड एंथर आर मेल पार्ट, कार्पल इज द फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट कंसिस्ट, दिस कार्पल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओव्यूल्स जो फीमेल गैमेट्स हैं दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। नाउ कम टाइप ऑफ flowers. There are 2 type of flower, unisexual flower and bisexual flower. अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं? वो फ्लावर जिसमें या तो स्टेमन है या कार्पल है, मीन्स ईदर द फ्लावर हैज़ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन। इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर बियर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, means the flower has both stamen as well as carpel. For example hibiscus and mustard. Hibiscus is China rose. तो ये भी एक important differentiate है। Now come pollination. What is pollination? Pollination. Pollination is transfer of pollen grains. Pollen grains are male gamete. तो जब male gamete मैंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, मीन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर जाते हैं, द पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन एंड दिस ट्रांसफर अक्कर बाय द एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सपोज बहुत ईजी पेपर आ जाता है और आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन, गिव 3 एजेंट्स। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the flower is called pollination, and the transfer 3 agents of pollination are wind, water and animals. Now come types of pollination. There are 2 types of pollination. First is self pollination and other is cross pollination. Self pollination, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मीन्स एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा से निकला, एंथर से निकला और स्टिग्मा पर चला गया।
क्या, पॉलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ सेम काइंड। ऐसा नहीं कि गुलाब के पोलन ग्रेन्स गेंदे में चले जाएंगे, नहीं, गुलाब के गुलाब में ही जाएंगे बट डिफरेंट फ्लावर में। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ईच ओव्यूल हैज़ द egg cell. आफ्टर पोलन लैंड्स ऑन दी स्टिग्मा, जैसे ही पोलन स्टिग्मा पर आता है, पोलन ट्यूब ग्रो होती है और इस पोलन ग्रेन को लेके जाती है स्टाइल से ओवरी तक। ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं, दैट इज ओव्यूल। तो जब ये मेल जर्म सेल, जो मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट तक पहुंचता है और उसके बाद ये फ्यूज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मेल germ cell reaches female gamete and fuse to form zygote. Zygote divides several times to form embryo within the ovule. Ovule एक टफ कोट बना लेता है एंड उसके बाद वो ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में, बाय द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाते हैं। पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा में श्रिवल, जो पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा थी वो सब गिर जाती हैं, सिर्फ जो ओव्यूल्स होते हैं वो चेंज होते हैं सीड्स में और ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट्स में। बट सेपल्स में परसिस्टेंट, अब क्वेश्चन आ जाता है सेपल्स कहाँ रह जाते हैं। इन द केस ऑफ ब्रिंजल एंड टमाटो सेपल्स रिमेन देयर। नाउ कम हाउ फ्लावरिंग प्लांट